Hello everyone, welcome back to my channel Don't Retrofy. I am Tanmay Mulgun and today this is the second part of your basic concepts of geometry lesson from Maths 2. So until now we have completed the very primary basic parts of this lesson, and which includes a point, a line and a plane. You have completed practice set 1.1 in the previous video. So if you haven't checked that video, go and watch that video first. And if you have already checked that video, let's begin with this video. Okay, we'll start with some concepts and then we'll go towards the sums. Okay, let's begin. So beginning with the concepts, the first concept which we are going to understand is a line segment. So we have understood what is a line. Now we'll understand what is a segment. You already have covered this in your primary standards, and now we are going to revise it, and let's begin with the sums. So what is a segment? A segment is a line which has ends which cannot be extended. Then that is called a segment. For example, here we have segment AB. So in a line, when you can see there is an arrow, but whenever there is an arrow, which means that it can be extended, वो हम बढ़ा सकते हैं आगे. लेकिन जब भी हम लाइन सेगमेंट का बात करते हैं, जब भी वहां पे सेगमेंट ये टर्म आ जाता है, तो सेगमेंट आने की वजह से वो हम कभी एक्सटेंड नहीं कर सकते. इसके लिए वो होता है सेगमेंट. सेगमेंट होता है वेरी स्पेसिफिक, वो हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज योर लाइन सेगमेंट. द नेक्स्ट वन इज रे. रे ए बी क्या होता है? रे इज अ मिक्सचर ऑफ अ लाइन एंड अ सेगमेंट. यू कैन से लाइक दैट, wherein you can extend that ray from one direction but you cannot extend it from the other direction. That is, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो A पे पॉइंट है, लेकिन P वाले एंड में there is an arrow, which means आप P वाले एंड से उसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. So that is, जब आप दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते, that is your line. जब आप एक भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, that is your segment. और जब भी आप एक ही साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, that is your ray. ओके okay? और लाइन जैसे कि हमने बताया कि जब भी हम दोनों साइड से एक्सटेंड करते, दैट इज योर लाइन. फॉर एग्जांपल योर लाइन ए बी इज देयर. ओके, दिस इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स, एंड बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स विल अंडरस्टैंड सम मोर कॉन्सेप्ट्स, देन विल मूव टुवर्ड्स द सम्स. ओके, so the next concept is congruent segments. What do you mean by congruent? Congruent basically means that whenever the length of two segments are equal, then that is called as congruent segments. Okay, so here you can see I have two segments, segment AB and segment CD. Let's suppose the length of segment AB is 5 centimeters. Okay, and length of segment CD is also 5 centimeters, which means that length of AB is equal to length of CD. Correct? So this is your congruent segment. Then I can say that segment AB is congruent to segment CD. This is congruent segments. What do you mean by property of congruent segments? Like any other thing, congruent segments also have some basic properties. For example, reflexivity. Reflexivity means what? Segment AB is congruent to segment AB. That is, the length of any given segment cannot change. That segment only. The length of segment AB is 5 centimeters. So I can say that segment AB is congruent to segment AB itself. Then I have symmetry. Symmetry means what? Segment AB is congruent to segment CD. If I am saying that, I can also write it the other way around. Segment CD is congruent to segment AB. This is called symmetry. Okay, that is A equals to B, then B is also equals to A. That is your symmetry. The next one is transitivity. For example, if segment AB is congruent to segment CD and segment CD is congruent to segment XY, then I can say that segment AB is congruent to segment XY. That is your transitivity. In other words, A equals to B, B equals to C, then A equals to C. That is your transitivity. Okay, the properties of segments, congruent segments are reflexivity, that is A equals to A, symmetry, that is A equals to B, then B equals to A, then the last is transitivity, that is A equals to B, B equals to C, then A equals to C. These are very basic concepts of your congruent segments. The next one is comparison of segments. For example, let's say here I have segment AB, let's say 4 centimeter, and segment CD, let's say I have 7 centimeter. So obviously 4 centimeter is smaller than 7 centimeter. Then I can say that segment AB is smaller than segment CD.
that is your comparison, that is the lengths of the segments can be compared but given the length. okay, तो जितना भी उसका लेंथ रहेगा उसके हिसाब से वो सेगमेंट को हम छोटा या बड़ा दिखा सकते हैं. फाइन, these are some of the properties. We have some more, then we'll move towards the sums. okay, so the next three properties here, but you can just notice that in the previous slide I have 4, 5 and 7, and this slide I have 6, 9, 8 and 9. So you are like, क्या कर रहे हैं सर ये? I just tried to group similar propertied concepts together so that you will have a better understanding of this. okay, so the next is midpoint of a segment. midpoint मतलब क्या? एक segment जो exactly middle में होता है, that is called your midpoint. मतलब अभी segment AB जो है उसे अगर एक कोई भी specific point पे दो equal parts में मैं divide कर सकता हूँ, तो वो जो point है वो point होता है आपका midpoint. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट M है, AB अगर हमारा है 6 सेंटीमीटर्स का, सो पॉइंट M एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर्स के बाद है, सच दैट AM 3 सेंटीमीटर होगा, MB 3 सेंटीमीटर होगा. मतलब क्या? पॉइंट M जो है वो AB को परफेक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसके लिए हम उसे बोलते हैं मिड पॉइंट. किसका? सेगमेंट का. अगर हम मेजर कर सकते हैं किसी का लेंथ स्पेसिफिकली, तो ही हम उसका मिड पॉइंट बना सकते हैं. हम लोग लाइन का मिड पॉइंट नहीं बना सकते, लेकिन लाइन के ऊपर का कोई भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली गोस फॉर द रे, बट सेगमेंट का हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट हम मेजर कर पाते, क्योंकि उसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते. फाइन. सिमिलरली हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेज. ठीक है, मतलब अगर कोई भी हमारे पास लाइन है, जैसे कि अभी हमारे पास एक लाइन है AB, या फिर रे बोलो, लाइन बोलो, सेगमेंट बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा. AB एक लेंथ है हमारे पास, सो वो लेंथ के ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्रीज एक ऐसा लाइन उसे कट करना चाहिए कि जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे सेंटर पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का. ठीक है, मतलब जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और जो एंगल फॉर्म होता है बीच में, अगर वो 90 डिग्री बन रहा है, देन वी कॉल दैट दोस टू सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर. जैसे कि यहाँ पे CD और AB दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के लिए. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर दिस एक्सरसाइज इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. मतलब अगर सपोज एक पॉइंट C है मेरे पास जो लाइन के बाहर वाले साइड में है, तो अगर मुझे उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कोई भी लाइन से, एक गिवन डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है एक पॉइंट का और एक लाइन के बीच में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो पॉइंट से वो लाइन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, CD जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज CD इज परपेंडिकुलर टू AB. मतलब जब भी हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि वो है उसका डिस्टेंस. CD जो है वो डिस्टेंस है पॉइंट C का लाइन AB से. ठीक है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. लाइन की जगह पे यू कैन हैव अ सेगमेंट, अ रे, एनीथिंग. इट इज जस्ट फॉर अ लेंथ बोल सकते हैं आप. ठीक है, कोई भी लेंथ हो सकता है. वो वहां से लेके कोई भी बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस हम जब भी परपेंडिकुलर निकालेंगे तभी ही मिलेगा. ये सिर्फ स्पेसिफिकली यही लेसन के लिए यूज नहीं होगा, बहुत सारे आगे लेसन्स है जहां पे हम ये सब यूज करेंगे. ठीक है, सो अभी तो यहाँ पे हो गया. लेट्स बिगिन विद द सम्स. बट सम्स की तरफ जाने से पहले आई वांट यू टू रिमाइंड समथिंग. सो देयर इज दिस सब्सक्राइब बटन डाउन देयर, गो एंड क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन. उसके बाजू में बेल आइकन है, वो भी बेल आइकन दबा दीजिए, सो यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ whenever I'm uploading the videos. Also, I have started this new thing wherein there is a form in the description below. You have to fill that form. I'll get your numbers and I will send you the links of my videos directly on your WhatsApp, so that you won't be missing any of my videos. Okay, so you can study uninterrupted. YouTube डिसाइड नहीं करेगा कि आप कौन सा वीडियोस देखने चाहिए, वो हम आपको सीधा डायरेक्टली आपके WhatsApp में भेज देंगे. ठीक है, so this is how I have started the new thing, and let's begin with the sums. Okay, make sure you have subscribed already. Okay, so now moving towards the sums. These sums are very interesting, I am telling you. These are from practice at 1.2. The question is, the following table shows points on the number line and their coordinates. Decide whether the pair of the segments given below the table are congruent or not. हमें फाइंड करना है कि अभी जैसे कि यहाँ पे दो सेगमेंट्स दिए हैं,
सेगमेंट डी और सेगमेंट ए बी, हमें देखना है कि सेगमेंट डी और सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्या, उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए, अगर उसका लेंथ इक्वल है तो सेगमेंट क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हमें क्या एग्जैक्टली प्रूव क्या करना है, देखना है, चेक क्या करना है कि लेंथ ऑफ सेगमेंट डी शुड बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी, अगर है तो सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिंपल। ये हमें करना है प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइन, सेगमेंट डी दिया है, सबसे पहले सेगमेंट डी दिया है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ, हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता है, राइट, प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया है। कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी दिया है -7 और कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या दिया है 9, ठीक है। सो अभी लेंथ ऑफ डीई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डीई, ठीक है। लेंथ और डिस्टेंस क्या होता है, अगर कोई भी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, अगर कोई लेंथ है तो उसके डिस्टेंस जितना रहता है, करेक्ट। सो इसके लिए उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट 9 इज ग्रेटर देन -7, करेक्ट। सो यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, फाइन। सो लार्जर कोऑर्डिनेट हियर इज 9, माइनस ऑफ -7 becomes 9 plus 7, 9 plus 7 कितना होता है, 9 plus 7 is 16 units। so length of D कितना है, length of D is 16 units। so हम लोग को फाइंड करना है कि अभी D तो मिल गया, अभी फाइंड करना है AB कितना है। so AB के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ A is -3, सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या है 5। सो दिस लेंथ ऑफ DE, सॉरी लेंथ ऑफ नॉट D तो हो गया, हमें करना है लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB, करेक्ट। लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। हमें फॉर्मूला क्या है, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है, 5 इज ग्रेटर देन -3, सो लार्जर कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 5, माइनस ऑफ -3 हो जाता है +3। सो 5 + 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 + 3 इज इक्वल टू 8। सो लेंथ ऑफ AB है 8 और लेंथ ऑफ DE है 16। सो दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल नहीं है, लेंथ ऑफ DE इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। तो दोनों का लेंथ अगर इक्वल नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सो सेगमेंट DE इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB। ये हमें लास्ट में फाइनल आंसर लिखना है। अगर उनका लेंथ इक्वल आ जाता था तो वो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, अगर नहीं आया इसके लिए वो सेगमेंट्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिंपल टाइप ऑफ सम है। और एक सम करते हैं तो so आपको ये अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। और एक सम करते हैं, फाइन। सो विल डू वन मोर सम एज आई वाज टेलिंग यू। सो द नेक्स्ट वन इज BE एंड AD। ओके, BE क्या है, BE है, यहाँ पे देखिए B दिया है और दूसरा दिया है AD दिया है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस वन, फाइन। तो अभी क्या है कि B का लेंथ फाइंड करना है हमें। सो B का लेंथ फाइंड करने के लिए आई हैव टू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ B। B का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या है, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ E है हमारा 9। सो हमें पता है कि 9 इज ग्रेटर देन 5, तो लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड E। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। लार्जर कोऑर्डिनेट है 9, -5 इज इक्वल टू 4। सो लेंथ ऑफ B कितना मिला, लेंथ ऑफ B मिला हमें 4 यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली हम अभी फाइंड करेंगे दैट ऑफ AD। सो AD फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ A। कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना है, कोऑर्डिनेट ऑफ A है -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना है, कोऑर्डिनेट ऑफ D है -7। So we know that -3 is greater than -7. So length of AD is equal to distance of A and D, distance between A and D. So larger coordinate minus smaller coordinate, larger coordinate क्या है -3, minus of -7 बन जाता है -3 plus 7, -3 plus 7 होता है 4. So length of AD कितना हुआ, length of AD बन जाता है 4 यूनिट्स। so यहाँ पे आप देख सकते हैं कि length of BE is equal to length of AD।
दोनों का लेंथ हमें इक्वल मिला है। अगर दोनों का लेंथ इक्वल मिला है सो वी कैन से दैट सेगमेंट BE इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर लेंथ इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें मिलता है वो कॉन्ग्रुएंट, सेगमेंट होता है कॉन्ग्रुएंट। अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो सेगमेंट हो गया नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बहुत सिंपल। अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो द सेकंड सम इज पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। ठीक है, अब लेट्स से ये हमारा है सेगमेंट AB। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट M। फाइन, AB का मेजरमेंट कितना दिया है, AB का मेजरमेंट दिया है 8। फाइंड द लेंथ ऑफ AM। अभी मिड पॉइंट अगर दिया रहेगा तो ऑब्वियसली उसका मतलब क्या है कि AM और MB दोनों इक्वल है। पॉइंट M जो है वो एग्जैक्टली बीच में है, AB के एग्जैक्टली बीच में है। ठीक है, तो अभी अगर हमें AM फाइंड करना रहेगा तो मैंने जैसे बोला था कि एक प्रॉपर्टी था AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है तो दोनों के दोनों सेगमेंट्स को आधे में, बिल्कुल आधे में डिवाइड कर देता है वो। ठीक है, तो अगर हमें AM और MB का इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AB, तो अभी हमें सिर्फ AM चाहिए, सो AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। करेक्ट, रीजन आएगा M इज द मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, लेकिन AB कितना दिया, AB दिया है 8, सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8, सो हाफ ऑफ 8 कितना होता है, 1 जार 4 जार, सो AM कितना मिला, AM हमें मिला 4 यूनिट्स। सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, सो हम लिखेंगे AM इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम, वेरी इजी सम, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइन, सो मूविंग टुवर्ड द थर्ड सम ऑफ योर प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन सेम है, सेकंड क्वेश्चन के जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। वहां पे हमें AB का मेजरमेंट दिया था, मिड पॉइंट का फाइंड करना था। यहाँ पे मिड पॉइंट का दिया है, हमें फुल सेगमेंट का फाइंड करना है। ठीक है, सो पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। सो लेट्स से दिस इज आवर सेगमेंट CD। ठीक है, ये हमारा हो गया सेगमेंट CD। पॉइंट P जो है वो उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल। CP कितना है, CP दिया है 2.5, हमें फाइंड करना है CD, लेंथ ऑफ CD फाइंड करना है। ठीक है, सो हमें नॉर्मली पता है लेंथ ऑफ CP इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ CD। करेक्ट, CP कितना दिया है, CP दिया है 2.5, और ये 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD। ठीक है, तो अभी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है, 5 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD। करेक्ट, तो CD कितना है, लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 5 व्हाट यूनिट्स। हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं है, सो आई विल राइट यूनिट्स। दिस इज वेरी इजी, बहुत ही इजी है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते। ठीक है, सो द फोर्थ सम इज इफ सेगमेंट AB is equal to 5, BP is equal to 2 and AP is equal to 3.4 सेंटीमीटर्स, कंपेयर द सेगमेंट्स। हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट में सीखा था, हमें कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट्स सीखा था, राइट। सो हम लोग को क्या पता है अभी, वी नो दैट AB is equal to 5 सेंटीमीटर, BP is equal to 2 सेंटीमीटर एंड AP is equal to 3.5 सेंटीमीटर। सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या पता है कि 5 is greater than 3.5 is greater than 2। करेक्ट, लेकिन 5 किसका है, 5 AB का है, सो वी नो दैट AB is greater than 3.5 किसका है, AP का है, सो AP is greater than BP। BP कितना है, 2 किसका है, BP का है, सो आई विल राइट BP है। सो दिस इज आवर आंसर। ये हो गया हमारा कंपैरिजन फोर्थ सम का। ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा था यही वीडियो में स्टार्टिंग में। ठीक है, सो सिंपल सा है, हम लोग किसका लेंथ ज्यादा है वो एक बार फाइंड करेंगे और उसे ग्रेटर देन के फॉर्मेट में लिख देंगे। दिस इज योर फोर्थ सम। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम and that is the fifth sum of this exercise practice set 1.2. okay, so the fifth sum is write the answers to the following questions with reference to figure 1.13, जो कि यहाँ पे फिगर है वो। write the names of the opposite rays of RP। ठीक है, RP जो है वो यहाँ पे है, RP ऐसा है, उसके opposite rays there is one simple thing in opposite rays, that is अगर रे ऐसा है, ठीक है, आई होप यू कैन सी माई थंब, अगर रे ऐसा है तो उसका अपोजिट रहेगा ऐसा। ठीक है, दैट इज जो एरो है
वो अदर साइड पे जाना चाहिए, जो पॉइंट है वो वहीं पे रहेगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग जो होता है वो पॉइंट से होता है, जो पॉइंट है अभी पॉइंट आर से इसका स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो अपोजिट रे रहेगा उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट आर से ही रहेगा। सो अपोजिट रे ऑफ रे आर पी कैन बी रे आर एस और इट कैन ऑल्सो बी रे आर टी, ठीक है। दीज आर द टू रेज, फाइन। So next one is write the intersection set of ray PQ and ray RP. ray PQ कहाँ पे है, ray PQ यहाँ पे है, and ray RP कहाँ पे है, RP यहाँ पे है। So ये भी दोनों है। So obviously जब भी हम ray RP को ऐसे extend करेंगे so PQ में भी जाने वाला है। So obviously so intersection जो है वो है दोनों में common portion कौन सा है, common portion है PQ वाला, लेकिन ray PQ रहेगा क्योंकि वो right side में extend होते जा रहा है। So the answer will be ray PQ. Okay, very easy. Let's move towards the next sum. The next one is write the union set of ray PQ and ray QR. ठीक है, let me just change the color of this. Union set of ray PQ. ray PQ कहाँ पे है, ray PQ यहाँ पे है, and QR कहाँ पे है, यहाँ पे है। So ये जो segment PQ है वो दोनों रे के कॉमन में है, और लेकिन हमें पूछा गया है यूनियन। यूनियन क्या रहेगा, एक रे राइट साइड में एक्सटेंड हो रहा है, एक रे लेफ्ट साइड में एक्सटेंड हो रहा है, तो इट इज एज गुड एज दोनों जगह पे एरोज है। दोनों जगह पे एरोज कभी रहता है, जब भी वी हैव अ लाइन। सो एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर विल लाइन पी क्यू, लाइन आर क्यू, लाइन एस क्यू, कोई भी लिख सकते हो चलेगा क्योंकि यहाँ पे यूनियन पूछा गया है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट। क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर है यहाँ पे। क्यू आर किसका सबसेट है, क्यू आर सबसेट है रे क्यू एस का सबसेट है, रे क्यू टी का सबसेट है, ठीक है। ये दोनों का सबसेट है रे क्यू आर। हम लोग क्यू पी क्यू आर भी लिख सकते हैं क्योंकि सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, करेक्ट। सो हम लोग क्यू आर भी लिख सकते हैं वहां पे, और क्यू पी भी लिख सकते हैं लॉजिकली क्योंकि क्यू पी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज your answer, but we'll just go with ray QS and ray QT. Fine. Write the pair of opposite rays with common endpoint R. R से opposite rays कौन सा है, ठीक है। pair of opposite rays. So ray हमारा हो गया RP और उसका opposite ray है हमारा ray RS। हम लोग इसका और एक लिख सकते हैं ray RQ और उसका opposite रहेगा ray RT, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट R है तो हम लोग का फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो R रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज राइट एनी टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट्स एस। एस से स्टार्ट होने वाले रेज लिखने, कोई भी दो लिख सकते हैं हम। सो हम लोग लिखेंगे रे आर सॉरी एस आर या फिर रे एस टी, कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स ऑन अस। राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी। एस पी कहाँ पे है, रे एस पी एंड रे एस टी, एस टी। सो दोनों के दोनों रेज जो है वो पॉइंट एस से स्टार्ट हो रहा है, वो एक ही कॉमन पॉइंट है एस पी में भी और एस टी में। सो भी यहाँ पे आंसर आएगा हमारा पॉइंट एस, ओके। वेरी इजी, बहुत बेसिक पार्ट है ये, अंडरस्टैंड दिस। जब भी हम रे के बारे में बात करते हैं जो फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं वो रहेगा जहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है, और जो सेकेंड लेटर जो हम लिखेंगे वो रहेगा जो साइड में उसका एरो है, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फिफ्थ सम and we'll move towards the sixth and the last sum of this video. Okay, let's go. Moving towards the sixth sum of your practice set 1.2, the question is very simple. Answer the questions with the help of the figure. ये हमारा figure जो है वो use करके we have to answer the questions. The first one is state the points which are equidistant from point B. Point B कहाँ पे है, point B यहाँ पे है, उससे equidistant वाले कोई भी दो points हमें बताने हैं। So the points are, the pair of points are point A and sorry it is point A and point C are equidistant from point B. क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 2 units अपार है, because both points are at a distance of 2 यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि B से 2 यूनिट्स राइट में गया तो हमें C मिलता है, B से 2 यूनिट्स लेफ्ट में गए तो हमें मिलता है A। दैट्स व्हाई बोथ आर इक्विडिस्टेंट। वैसे ही हम लोग
पॉइंट डी और पॉइंट पी भी बोल सकती है कि वो 4 यूनिट्स राइट में है, 4 यूनिट्स लेफ्ट में है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. इट इज अपॉन यू. ठीक है, उन्होंने एक ही पूछा है, कितना पूछा नहीं, सो विल जस्ट गो फॉर वन. फाइन. नेक्स्ट सम. Write the pair of points equidistant from point Q. I want you to answer this sum. However, within 3 seconds I'll answer it on my own, but you can pause the video, give it an attempt and then start again. Okay? Let's go. Point Q कहाँ पे है? Point Q है यहाँ पे -4. उसके राइट साइड में 2 यूनिट्स पे है point P. So statement point P and point R are equidistant from point Q because both are at a distance of again 2 units. सेम स्टेटमेंट ऊपर का नीचे लिखा है. ठीक है, सो आप यहाँ पे U और L भी लिख सकते क्योंकि वो दोनों 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है. फाइन. द थर्ड वन इज a bit tricky. For that we have to write down the measures of other points as well. So what I'm going to do is I'm going to give you the measures or the coordinates of other points, but you have to solve the sum. Okay, so A is 0, so ये वाला पॉइंट रहेगा 1, ये 2 है, ये 3 होगा, ये 4 है, तो ये होगा 5. सिमिलरली 0 के बाद लेफ्ट में -1, -2, -3, -4, -5. ये आपका कोऑर्डिनेट्स है. डिस्टेंस फाइंड करने आपको आता है. अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करने नहीं आता है, सो गो टू माय फर्स्ट पार्ट जो है ये लेसन का, वो पार्ट में मैंने सिखाया है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है. ठीक है, गो एंड वॉच दैट वीडियो and you will understand how to find the distance. However, pause the video, give it an attempt if you know, and I'll give you the direct answers to all the 4 questions. Fine. So here you go. So these are the answers to your sums. वो जो आपको distances find करना है उसका आंसर है यहाँ पे. सबके सब यूनिट्स में है. ठीक है, I'm not in units. Write it down. Fine. I hope you have done this correctly. If you have not, go to the first part, watch it again, and I hope you will understand that. Let's move towards the end of this video. Okay, so we have completed practice at 1.2, concepts of practice at 1.2 in this part, that is the second part of the series. I hope you have understood all the sums, all the concepts, and you have understanding what I am teaching. You are also enjoying what I am teaching. Okay, if you are doing so, press the like button down there. Also, I'm repeating it again, subscribe to my channel, press the bell icon. If you're a new subscriber, subscribe. If you've already subscribed, well and good. Watch my other videos. I have completed some videos of lesson number 1 of Maths 1 as well. Okay, so there is one more thing which I am telling you, that is in the description below मैंने एक फॉर्म बनाया है, वो फॉर्म भर दीजिए so that you will get updates, links to my videos directly on your WhatsApp. Okay, so with this said, all the very best and thank you so much.